السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی یہ کہانی بہت ہی انوکھی اور پراسرار سے بھری ہوئی ہے۔ ایک انسان کی محبت جن زادی سے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ آئیے یہ کہانی مکمل سنتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر دیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی برائے مہربانی بیل کو ضرور دبایا کریں۔ جس بلڈنگ میں مزدوری کر رہا تھا وہاں پر مستری کے ساتھ ایک مزدور بھی تھا جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتا تو میں اپنی کتاب نکال کر اس کو پڑھتا تھا۔ پلازے کا مالک بھی نمازی اور پرہیزگار تھا۔ ایک بہت عجیب و غریب بات دیکھی کہ جس پلازے پر یعنی جس بڑی سی بلڈنگ پر ہمارا کام ہو رہا تھا وہاں اس کے سامنے ایک بڑا سا خالی پلاٹ تھا جس کے چاروں طرف اونچی دیوار اور سامنے کی طرف بڑا سا گیٹ تھا۔ پلاٹ کے اندر انتہائی کونے میں چھوٹا سا کھنڈر نما کمرہ، آس پاس جھاڑیاں اس کے اگی ہوئی تھی اور کئی ایک بڑے بڑے درخت تھے۔ چھت پر سے اس خالی پلاٹ کا سارا نقشہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں اگر کوئی ہوتا بھی تو اس کے وجود کا علم ہونا نہ ہونے کے برابر تھا۔ بس ہلکی سی روشنی نظر آتی جو رات کو ہی دکھائی پڑتی تھی۔ سارا دن نیچے کام پر ہی ہونے کی وجہ سے دن بھر پلازے سے یعنی اس بڑی سی بلڈنگ سے اس طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کبھی دوپہر کو کھانے کی چھٹی یا آرام سمجھ لیں، اس دوران میں اپنی پڑھائی کرتا تھا۔ صبح نیچے آتے ہوئے رات کو ساتھ لائی کتاب لانا معمول بن گیا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے اوپر چھت پر آیا اور کتاب اٹھا کر سیدھا ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر پیچھے والے پلاٹ پر گئی تو میری نظروں کے سامنے اس کھنڈر نما چھوٹی سی عمارت میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کوئی خاتون تھی جو میری طرف پیٹ کیے شاید گود میں بچہ لیے بیٹھی تھی۔ میں سرسری نظر ڈال کر نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ رات کو میں نے اوپر آ کر خالی پلاٹ کی طرف دیکھا تو کمرے میں صرف ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا، مگر اندر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ میں بلب روشن کر کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ پتہ نہیں کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ کھلے آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ماحول کی جادوئی تاریکی رات کا وہ منظر، چاروں طرف خاموشی کا عالم، اور 7 منزلہ پلازے کی چھت پر پڑا میں تنہا گھر سے دور غریبی سے اکتا کر اس شہر پڑھنے چلا آیا تھا۔ پتہ نہیں میں سو رہا تھا یا نیم بے ہوشی میں تھا۔ کوئی انسانی وجود چھت پر ادھر ادھر حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ ساتھ میں آگے پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ پھر وہ چھت پر سے یوں پیچھے کی طرف چلتے دوسری طرف چلے گئے جیسے پلازے سے کوئی دوسری چھت پر موجود ہو۔ میری یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر بس سطور جگمگا رہا تھا۔ میں نے نیچے خالی پلاٹ کی طرف دیکھا، وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ تھوڑی ہی دیر یوں ہی گمسم بیٹھا رہا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں کب نیند نے دبوچ لیا۔ صبح جھنجھوڑ کر جگانے والا اس عمارت کا منشی تھا۔ سورج سر پر آ گیا تھا اور میں ابھی تک سو رہا تھا۔ جلدی جلدی میں نے بستر اٹھایا، اپنی کتاب سنبھالی اور نیچے کی طرف بھاگا۔ جلدی کے باعث نیچے خالی پلاٹ کی طرف بھی نہیں دیکھ پایا، حالانکہ اٹھتے ہی میری نظر ادھر جاتی تھی۔ دوپہر تک میں اپنے کاموں میں الجھا رہا۔ جب کھانے کا وقفہ ہوا تو پھر نہ چاہتے ہوئے سیڑھیاں پار کرتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ اپنا بستر سیدھا کیا اور بیٹھ کر کتاب کھول لی، مگر میرا دھیان نیچے پلاٹ کی طرف تھا۔ درختوں کی طرف سے کوئی پلک جھپکتے نکلا اور بوسیدہ سے کمرے کے اندر گم ہو گیا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ میں چھت سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں کوئی خاندان رہتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی لڑکی یا خاتون، ان کو میں نے 1-2 بار جائزہ لینے کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے جسم کی ساخت سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ جسمانی طور پر بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی دلکش نقوش رکھنے والی، بہت ہی حسین ہوگی۔ میں جتنی دیر تک وہاں بیٹھا رہا کوئی بھی خاص بات سامنے نہیں آئی اور میں دوبارہ چھت سے نیچے اتر گیا۔ 2 دن گزار کر میں گھر سے واپس ڈیوٹی پر آیا تو سب سے پہلے میرے قدم اوپر چھت کی طرف اٹھ گئے۔ اچھی طرح سے نیچے پلاٹ کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی حرکت اور نہ ہی کسی انسان کا نام و نشان دکھائی دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں رہنے والی فیملی کے بارے میں کیوں دلچسپی لے رہا تھا، حالانکہ مجھے ایسے معاملات میں توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں کیوں اس بارے میں پریشان تھا۔ اس سلسلے میں 2-3 بار میرے ذہن میں آیا کہ کسی سے پوچھو ادھر کون رہتا ہے، پر میری ہمت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی، کیونکہ میرے بارے میں یہاں سب لوگوں کے بہت اچھے خیالات تھے اور میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ مالکان پلازا میرا چھت پر جانا بند نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر میں نے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹک دیا اور یوں ہی تاک جھانک پر
मैंने गुजारा कर लिया था। मगर आज मेरे दिल को करार नहीं आ रहा था, न जाने क्यों। मैं जानना चाहता था उस प्लॉट में कौन रहता है। आज भी मैं खाना खाने लगा तो मेरे कदम प्लाजा से पीछे वाले हिस्से की तरफ उठ गए। काफी ऊंचाई से नीचे का मंजर दिखाई तो पड़ रहा था, मगर कदरे धुंधला था। जब मैं उस खाली प्लॉट की ऊंची दीवारों और बंद गेट के सामने आ खड़ा हुआ तो गेट के जंग आलू ताले को देखकर अंदाजा हो गया कि यहाँ मकीन साइड वाले छोटे गेट को ही आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं कुछ अंदाजा ही लगा रहा था, अचानक साइड वाला छोटा गेट खुलने का एहसास हुआ। मैं फौरन गेट से हटकर आगे बढ़ना ही चाहता था कि खुलने वाले हिस्से के दूसरी तरफ एक खूबसूरत दमकता हुआ चेहरा मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। मैंने इधर उधर देखा और मुड़कर गेट के छोटे दरवाजे के आगे आ खड़ा हुआ। जी, मैंने निगाहें नीचे करते हुए पूछा। अंदर आ जाएं, घर में कोई नहीं है। जी, आप यहाँ अकेली रहती हैं? मैंने हैरतज़दा होकर पूछा। नहीं, मेरा मियाँ और मेरा बच्चा भी है। उसने मुस्कुराती नजरों से मेरी हैरत को भांपते हुए झट से जवाब दिया। तो आपका मियाँ नजर नहीं आता? मैंने बेख्याली से पूछा। वो देर से घर आते हैं, सुबह मुंह अंधेरे ड्यूटी पर चले जाते हैं। सारा दिन हम दोनों माँ बेटे घर में अकेले होते हैं। मैं कई दिनों से आपको देख रही हूँ कि आप इधर देखते रहते हैं। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते मेरी चोरी का राज फाश करते बराह रास्त मेरी आंखों में झांका। जवाबन मैं शर्मिंदा होकर रह गया और नजरें फेर ली। अंदर आ जाइए, बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं है आपका। उसने मेरा हौसला बढ़ाया। चंद पल में मैंने सोचा और साइड गेट उबूर करके अंदर आ गया। चारों तरफ वीरानी का राज था। पूरे प्लॉट में ऊंची ऊंची घास और बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थी। अभी मैं उधर ही मुतवज्जे था कि छोटा सा लड़का अंदर से बाहर आकर अपनी माँ के साथ लग गया। मेरी तरफ हैरतज़दा नजरों से देखने लगा। मेरा बेटा रामी है। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसका नाम बताया। मैंने चौंक कर उस लड़की से उसका नाम पूछ लिया। उसने धीमे लहजे में बताया, सलोमी। खूबसूरत नाम है। मैंने तारीफ की। आप इधर आ जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सलोमी ने बेतरतीब टूटी फूटी ईंटों पर कदम आगे बढ़ाते हुए रामी का बाजू पकड़ लिया और मुझे टूटे फूटे कमरे के अंदर आने की दावत दी। मैं न चाहते हुए भी सलोमी के पीछे चलता हुआ उस टूटे फूटे से कमरे के अंदर आ गया। दरवाजे की जगह लोहे की चौखट पर पुराना सा पर्दा लगाकर दरवाजे का काम लिया गया था। अंदर एक चारपाई और थोड़े से पुरानी तर्ज के कच्चे और सिल्वर के बर्तन अजीब तरह से पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उन्हें इस्तेमाल न किया गया हो। आप कब से इस प्लाजा में काम कर रहे हैं? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। दरअसल मैं इस शहर में पढ़ने आया हूँ। मेरा खानदान इंतहाई गरीब है। सब मिलकर कमाते हैं तो गुजारा हो जाता है। सोचा कि अपनी तालीम मुकम्मल करके कोई अच्छी नौकरी कर लूं ताकि अपने घर वालों को संभाल लूं। ये कहकर मैं खामोश हो गया। इधर उधर की बातों के दौरान सलोमी ने बताया कि जिनके प्लॉट में हम रह रहे हैं, मेरा खाविंद उनकी फैक्ट्री में मुलाजिम है। सुबह मुंह अंधेरे यानी सुबह ही सुबह अंधेरे में काम पर चला जाता है और शाम बल्कि रात गए वापस आता है। आप पर जब दिल चाहे आ जाया करें। इसी बहाने मेरा और रामी का दिल बहल जाया करेगा। सलोमी के लहजे में अपनायत और बेचारगी का दर्द भरा हुआ था। मैंने वादा कर लिया कि जब भी फारिग हुआ करूंगा उससे मिलने जरूर आया करूंगा, क्योंकि मैं भी तो अकेला हूँ इस अजनबी शहर में। कोई अपना मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। फिर मैं जाने लगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं आपसे फिर से कहूंगी कि जरूर आया करें, जरूर। आपसे मिलने का मेरा बहुत दिल चाहता है। मैंने जज्बात से बेकाबू होकर सलोमी को अपने दोनों बाजुओं में ले लिया और अपने सीने से लगाते हुए उसे भरपूर यकीन दिलाया। काफी देर तक हम दरवाजे के करीब खड़े हुए एक दूसरे को महसूस करते रहे और फिर मैं इजाजत लेकर बाहर आ गया। दूर तक पड़े खाली प्लॉटों के सिवा वहां कोई भी दूसरा नहीं मेरे सिवा। मेरा अब सलोमी को मिलने के लिए दिल बेकरार होने लगा था। रात को मैं छत पर और वो बाहर चारपाई पर आकर बैठ जाती और हम एक दूसरे को देखते रहते। ये सिलसिला रोज बरोज आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसका बेटा भी मुझसे खासा मानूस हो चुका था। कभी कभी मुझे उस वीराने की खामोशी से डर लगने लगता था, मगर फिर ये सोचकर दिल बड़ा कर लेता कि ये औरत होकर, अकेली जवान औरत होकर छोटे से बच्चे के हमरा दिन रात अकेली रह रही है और मैं मर्द होकर डर जाता हूँ। मैंने सलोमी को मना कर दिया था कि तुम कुछ न बकाया करो, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना सब बाहर से लेकर आया करूंगा। मगर उसने मना कर दिया कि मैं आदी हो चुकी हूँ। वो यानी शौहर जो रात खाना लाते हैं वो इतना हो जाता है कि सुबह का नाश्ता भी पेट भरकर कर लेती हूँ। वो तो नाश्ता फैक्ट्री जाकर करते हैं। मैं मुतमईन हो गया। अब मैं बिला रोक टोक जब दिल चाहता उसके घर पहुंच जाता था और वो मेरा इस्तकबाल बहुत ही शानदार तरीके से करती थी। एक दो बार मैंने कोशिश की कि दोनों माँ बेटे को
बाहर लेकर जाऊं घुमाने के लिए, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया, अगर उन्हें यानी उसके शौहर को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। जब हम आजादी से उसके अपने घर में मिल लेते हैं तो बाहर जाकर क्या करेंगे। छुट्टी करके एक दिन जब मैं सलोमी को मिलने गया तो उसने बताया, मेरा शौहर मालिकों के काम से शहर से बाहर गया हुआ है, आज रात वो घर पर नहीं आएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम इधर ही रुक जाओ। नहीं, मुझे कोई दिक्कत या मसला नहीं है, मैं चौकीदार को बताकर रात को आ जाऊंगा। मैंने उससे वादा कर लिया और वापस प्लाजा आ गया। शाम को छुट्टी करके मैं नहाकर तैयार हुआ और चौकीदार को बहाना बनाकर वहां से निकल गया। इधर उधर फिरते अंधेरा फैल गया था और मैं प्लाजा की पिछली वाली सड़क पर चलता हुआ सलोमी के गेट पर आ गया। वो मेरी मुंतजिर थी। छोटा दरवाजा खोलते ही उसने मेरा हाथ थामा और अंदर खींच लिया। कमरे में आते ही उसने कुंडी चढ़ा दी। उसका बेटा सो रहा था और चारपाई पर बड़े सलीके से बिस्तर बिछा हुआ था। मेरे बैठते हुए वो मेरे करीब आ गई। सलोमी, उसने खुद को मेरे करीब करते हुए जवाब दिया, ये पक्की बात है ना कि तुम्हारे मियाँ के आने की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, इस बारे में परेशान ना हो, मैं अक्सर कई कई रातें नहीं आता, मालिकान उसे इधर उधर भिजवाते रहते हैं। सलोमी ने मुझ पर कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में तसल्ली दी और मेरे करीब दराज हो गई। रात गए वो मुझ पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाती रही। तमाम रात उसका बेटा रामी पल भर के लिए भी इधर से उधर न हुआ और बेखबर पड़ा सोता रहा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैंने रूटीन की आदत को फरामोश कर दिया था और यूं ही सलोमी से लगकर पड़ा सोता रहा। मेरा पूरा जिस्म कमजोरी में डूबा हुआ था। बाहर दिन के उजाले की रोशनी पर्दों से झनकर अंदर कमरे में आ रही थी। मैंने धीरे से सलोमी को खुद से अलग किया और चारपाई पर सीधा होकर बैठ गया। बाहर दिन के उजाले की रोशनी पर्दों में से छनकर अंदर कमरे में नीम तारीकी का समा पेश कर रही थी। मैंने धीरे से सलोमी को खुद से अलग किया और चारपाई पर सीधा होकर बैठ गया। रामी उस पोजीशन में पड़ा हुआ था, बिल्कुल साकित। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो सब झटका लगा। वो किसी लाश की तरह सर्द पड़ा हुआ था। मैंने घबराहट में सलोमी को झंझोड़ा तो वो भी उसी तरह बेजान महसूस हुई। इस सूरत-ए-हाल से घबराकर उठ भागने को था कि एकदम सलोमी के जिस्म में हरकत हुई। वो हल्की सी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उठ गए। उसने तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए मुझे मुखातिब किया। मैं उसकी अंगड़ाई के अंदाज को देख रहा था। मैंने लंबी सांस भरी और जवाबन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो सारी रात होश ही नहीं रहा। हम ऐसे ही होश उड़ा देते हैं, उसने शौकी से कहा और उठकर रामी की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो अब करवट बदले इधर उधर देख रहा था। फिर सलोमी ने उसे उठाकर गोद में ले लिया। मैं उसको गौर से देख रहा था। क्या इसका शौहर इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देता? किस तरह इसको अकेले छोड़कर चला जाता है? मैं तो इसको कभी ना छोड़ूं। अच्छा सलोमी, मैं अब काम पर चलता हूँ, दोपहर को आ जाऊंगा, मैंने अपने जहन को झटकते हुए कहा। ठीक है, उसने मुस्कुराती निगाहों से मेरी जानिब देखा। मैं मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकलकर गेट की तरफ बढ़ गया। मेरे जिस्म से जैसे जान निकली पड़ी थी। इस तरह की कैफियत थी मेरी जैसे मेरे अंदर से किसी ने पूरी जान निचोड़ ली हो। बड़ी मुश्किल से मैं उस इमारत की तरफ पहुंचा। मुंशी चाय पी रहा था। मुझे देखते ही दूसरे कप में चाय डालकर मुझे दे दी। मैंने शुक्रिया कहते हुए कप उठा लिया। चाय पीने से मेरी तबीयत की सुस्ती में कुछ कमी आई। मैं उठकर ऊपर टेरेस की तरफ चल पड़ा। सारा वक्त मैं बेदिल सा हुआ बैठा रहा। मेरा सारा जिस्म थकावट से चूर था। उसके साथ साथ सलोमी के साथ गुजरा हुआ वक्त मुझे बड़ा ख्वाबनाक महसूस हो रहा था। दोपहर को मुझे टाइम नहीं मिला। शाम को छुट्टी करके मैं सलोमी को मिलने पहुंच गया। वो दोनों बड़े अच्छे तरीके से मुझसे मिले। सलोमी मेरे गले लग गई। मैंने उससे कहा, तुम्हारा शौहर अब तक नहीं आया? उसने जवाब में बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, उसने जाते हुए कहा था कि मुझे 2-3 दिन लग सकते हैं या शायद कल आए। ये कहते हुए उसने शौक निगाहों से मेरी तरफ देखा और मुझे लेते हुए अंदर कमरे में आ गई। कल रात में आपकी खिदमत ना कर सकी। मुझे खुशी के मारे कुछ याद ही नहीं रहा। ऐसा लगता है बरसों पुरानी ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा हो रही है और उस ख्वाहिश को आपने मुकम्मल कर दिया। मैंने तो ये फल वगैरह खा लिए हैं और ये आपका हिस्सा है, आप भी खाइए। तो आज भी मुझे आपका मेहमान बनना होगा? मैंने उसका इरादा भांपते हुए शरारत भरे लहजे में कहा। क्यों, आपका दिल नहीं चाहता कि आप मेरे पास ठहरें और मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करें? क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, अच्छी लगी तभी तो तुम्हारे पास बार बार आता हूँ। सलोमी, एक बात कहूँ? हाँ, 2 बातें करें। अगर आपका मियाँ अचानक आ गया और उसने मुझे देख लिया तो क्या बनेगा? मेरे लहजे का डर महसूस करते हुए वो मुस्कुराई और बोली, मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुम्हें कोई एतराज है
तो तुम मुझे फारिग कर दो, मैं नासिर साहब को नहीं छोड़ सकती। उसके लहजे में ठहराव को महसूस करते मैंने अपने अंदर एक तरह के हौसले को जगह दे दी। रात भर हम दोनों दुनिया से बेनियाज अपने आप में गुम रहे। रामी को सलोमी ने उसी तरह उस चबूतरे पर लिटा दिया था। वो तमाम रात बड़ा सुकून से सोता रहा और हम दोनों उसकी फिक्र से आजाद पड़े रहे। सुबह उठकर मैं इमारत में उस प्लाजा में आ गया और अपने काम में मसरूफ हो गया। सलोमी के ख्यालों में दिन रात में खोया रहता। लेकिन एक अजीब बात थी, मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ रही थी। ऐसा लग रहा था मैं बीमार हो रहा हूँ। ऐसी कमजोरी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। अब ये सिलसिला मुसलसल 2 माह से जारी था। मेरे अंदर सलोमी सांसों की तरह चलती थी। मैंने उसे दोबारा कहा कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं किसी दूसरे शहर। उसने इनकार तो नहीं किया, मगर ये कहकर मुझे मुतमईन कर दिया कि जैसे काम चल रहा है उसे चलने दे, जब कोई मसला बना तो ये भी कर लेंगे। फिर एक रात वो सब हुआ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसका शौहर उसी वक्त घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। लेकिन वो कोई आम जिसामत का आदमी नहीं था। वो बहुत ही लंबे कद का आदमी था। इंसान नहीं लग रहा था, वो कोई जिन्नाती मखलूक ही थी। उसने मुझसे कहा, क्या कर रहे हो मेरी बीवी के साथ? ये तो मेरे दोस्त हैं। दोस्त? और इस हालत में मेरे पीछे ये सब करती रहती हो? तुम कौन होते हो इस पर इस तरह हक जताने वाले? अपनी बीवी को तुम रातों में अकेला छोड़ देते हो, किस तरह इस खाली प्लॉट में पड़ी रहती है अपने बच्चे के साथ। क्या कभी सोचा है ये मेरा मसला है, मेरी बीवी है। तुम कौन होते हो हमारे मामले में दखल अंदाजी करने वाले? तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। मैं आखिर बोल ही पड़ा। और फिर ये तुम्हें छोड़ देगी। क्या कह रहे हो तुम इंसान हो। तो फिर क्या तुम इंसान नहीं हो? हम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात हैं। क्या? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। तुम जिन्नात हो और ये सलोमी भी जिन है? हाँ, ये भी एक जिन ही है। मैंने सलोमी की तरफ देखा। उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो मुझे नहीं, अपने शोहर को घूर कर देख रही थी। हाँ, मैं इस इंसान से मोहब्बत करती हूँ। तुमने मुझे अकेला छोड़ा, तुमने मुझे तन्हा किया। मुझे, मेरे बेटे को तुम अकेला छोड़कर चले जाते हो। ये इंसान मेरे लिए हमदर्दी रखता है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। इसने मुझे इतना खुश किया है जितना तुम आज तक खुश नहीं कर पाए। तो क्या मतलब है? तुम एक जिन हो और एक इंसान से तुम्हारा मिलाप नहीं हो सकता है। हमारा मिलाप हो चुका है। इससे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। यहाँ पर मैं शदीद परेशानी के आलम में खड़ा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो इतने अरसे से मैं एक जिनजादी के साथ था। वो इंसान नहीं थी, वो कोई अकेली तन्हा औरत नहीं थी। उसका बच्चा भी जिन था। मैं जिन्नात के दरमियान रह रहा था। ये जिनजादी मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त उसने मुझे पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा सकते हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें यही रहना होगा मेरे साथ। मैं अपने इस शौहर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, दूर हटो तुम मुझसे। तुम एक जिन हो। तुम एक जिन हो और जिन और इंसान का मिलाप नहीं हो सकता है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी आशिक हूँ। जब से तुम इस इमारत में काम कर रहे हो तब से मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे पास आती हूँ। और फिर जब तुम मेरे पास आए तो मैंने तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी की और तुमने मुझे बहुत तस्कीन दी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं इसको मार डालूंगी लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसका शौहर ये सब सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने उसको जोर से धक्का दिया जिससे वो दीवार से जाकर लगी। उसने उसकी मेरे सामने ही गर्दन तोड़ दी। हाँ, उसके जिनजादे शौहर ने अपनी बीवी को मेरे सामने मार दिया। मैं वहां पर आंसू बहाता रहा। जिस सलोमी से मैं मोहब्बत करता था वो एक जिनजादी थी। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, चाहे जिन से हो चाहे इंसान से हो। और सच में मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। मैंने उसके शौहर से कहा, ये क्या किया तुमने? क्या कर दिया तुमने? तुमने अपनी बीवी को मार दिया। हाँ, इसने बेवफाई की है और हम जिन्नात बेवफाई का सिला मौत की सूरत में ही देते हैं। इसे मैंने मार दिया है। अब अगर तू चाहता है कि तेरा भी यही हाल हो, तू यहाँ से चला जा। कहता हूँ चला जा। और तू यहाँ इस जगह, इस इमारत में हरगिज़ अब काम नहीं करेगा। सुन लिया तूने? मैंने उससे कुछ नहीं कहा और खामोशी से उस जगह से बाहर आ गया। यानी इतने अरसे से एक जिन औरत के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा था।